ਇਕੋਨਮੀ ਤੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਮੋਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 15-20 ਮਿੰਟ 20-25 ਮਿੰਟ ਪੀਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। Thank you very much, Mola Sahab, and very good day for everyone. जी ਜੀ ਪੀਕੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਔਨ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ। ਰੋਜ਼ਨਬਰਗ ਸਾਹਿਬ बड़ी ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। इंटरेस्टिंग जी रिपोर्ट है हाँ ਹਾਂ, जी। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। देखो ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋर्ट ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਡੇਵਿਡ ਰੋਜ਼ਨਬਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜਾ ਫੇਮਸ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਲਾਈਫ ਸਪੋर्ट ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਔਰ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ जीडीपी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗਿਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਫਾਲਨ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅ certain point, annual growth of roughly 1%। ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਹੋਮ ਪ੍ਰਾइसेस वर डाउन 2% फ्रॉम लास्ट ईयर, और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट फेल 5% अकॉर्डिंग टू द स्टडी। इस करके वो कह रहे हैं कि लाइफ सपोर्ट तो चल रही है क्योंकि हाउसिंग के अंदर बड़ा ज़बरदस्त और मॉर्गेज इंडस्ट्री के अंदर बड़ा ज़बरदस्त प्रॉब्लम आई थी इस वक्त, और इन्नी लंबी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। और बाकी वो ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਫਲੈਟ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਜ਼ ਰਿਸੈਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਕੁਆर्टर ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਰੀਅਲਟਰ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਪਰ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਕਿ ਰੇਟ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਵਾਟ ਐਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਜੀ ਪੀਕੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਯੈਸ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1-1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਲਮੋਸਟ ਮਾਰਚ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਬੜੀ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਪੀਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ। ਇਕੋਨਮੀ ਸਾਡੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਟ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਸਵੀਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਅਗਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਾਤਾ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਈ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੀਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ 2.4 2.5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਗਿਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਰੋਜ਼ਨਬਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਹੀ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਪੀਕੇ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਪੀਕੇ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਘਟਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ,
ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। कोई ਹੁਣ फर्क नहीं पिया। ਹੁਣ 25 ਘਟਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ की ਤੇ कर लेंगे। ਅੰਬ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ हाँ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 25 ਘਟਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ सेंटीमेंट्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਘਟਣ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਘਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਰ? ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣੇ ਆਈ ਸੀ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਰੈਨੂਅਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਆਪਣੀ ਇਕੁਇਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਡ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਬੁਰੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਫॉर एग्जांपल ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ 6 ਲੱਖ ਮਾਰਟਗੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, 1 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੌਬ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਰੈਨੂਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਨੂਅਲ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 1.5% 2% ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ 4% 3.5%, ਤੇ ਉਹ ਗੈਪ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਇਕੁਇਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਰੈਨੂਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਿਆ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਗਏ ਕਿ ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਜੀ, 6 ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਰਟਗੇਜ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੈਨੂਅਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਪਰੇਜ ਹੀ ਕਰਤਾ 8 ਲੱਖ, 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਰੈਨੂਅਲ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘਟਾਣੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਘਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਨੂਅਲ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਿੰਗ ਲਿਮਿਟ ਟਾਈਟ ਹੋਣਾ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ, ਲੈਂਡਰਸ ਨੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਇਕੁਇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਰਿਨਿਊਅਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ। ਇਹ ਝਟਕੇ ਬੜੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਓਕੇ ਸਰ, ਵੈਸੇ ਓਵਰਆਲ ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਓਵਰਆਲ? ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੀਅਲਟਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਇਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੈਲਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਫ ontario ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਬ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਆਨੇ ਦੀ ਸੇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਖੁਰਕਣ ਦੀ ਵੇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਆ ਗਈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਹੈ। ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਕੀ है। भाई एक डॉलर की तो सेल है नहीं, और इतना बिजी हूं कि सिर को खुरकने की भी मेरे पास टाइम नहीं है। क्या बात है। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਯਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰੀਕੋ ਵਾਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਬ ਵਾਲੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਰੀਕੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ, ਕੱਲ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हाँ, वो जी सेम एक दी जल्दी गल कर रहे ना, ਜੀ ते ਜੀ। वो अजे ते वन साइडेड स्टोरी है। टोरंटो स्टार मैं भी देखी, वो वन साइड स्टोरी है कि रिको ने की किया की किया की किया की किया। दूजे पासे दी स्टोरी रमन दुआ साहब उन्होंने दी स्टोरी सुनो ते बड़ी डिफरेंट लगती। वो अपील कर रहे हैं, दूजी गल टर्मिनेशन नहीं हैगी, इट इज़ ए सस्पेंशन, सस्पेंड हुआ है क्योंकि उन्होंने कुछ इरेगुलरिटीज मिली हैं, कोई फ्रॉड नहीं मिला, इरेगुलरिटीज मिली ने,
लोगों ने हवा फैलाती 2.7 मिलियन खा गया 2.7 मिलियन उड़ गया 2.7 हो गया। जद अगर तुम रीको की ही रिपोर्ट बड़े ध्यान नाल पढ़ो तो रीको की रिपोर्ट के अंदर ही है नहीं किया गया कि 2.7 मिलियन खत्म हो गया। उन्होंने किया मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, यानी कि पैसा पिया ਉਹਦੇ हर अकाउंट ਵਿੱਚ पैसा ਪਿਆ ਹੋਇਆ पर ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ कि कमीशन की दोस्ती जी का जंजाल, या अनाड़ी उसने कहा था उसने कहा था उसने कहा था, तो वो कह के वो कच्चे चावल ਨੂੰ खिचड़ी बना के ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਣਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ जी ਸੁਣਾਵਾਂ। बिल्कुल पीके जी बिल्कुल ਇੱਕ सुनाओ ਲੇਡੀ सुनाओ। ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਫਿਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੱਛੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ कि इस इतनी अच्छी फिश बनाने का राज क्या है। उसने कहा इसका राज है लोहे की कढ़ाई और सरसों का तेल। उसमें हम इस फिश को अच्छी तरह पहले भूनते हैं, थोड़ा वो कहते हैं ना उसको फ्राई किए बगैर थोड़ा सा उसको करते हैं। मैंने कहा और इसे कहते हैं इस फिश को तुम बड़े ढंग से 2 पीस में काटती हो। कहते इसका काटना बहुत जरूरी है क्योंकि सारा रस मसालों का इसके अंदर जाता है, नहीं तो जाता नहीं है। ये मेरी दादी का नुस्खा है अपना मोगा साहब। वो कहते हैं ये जी मेरी दादी का नुस्खा है कि भाई फिश को कढ़ाई की लोहे की कढ़ाई में बनाना, फिश के 2 टुकड़े सेंटर से करना और सरसों के तेल में बनाना। दादी उठे बैठी सी कोने च किधरे, तो मेरे बार के बंदे ने दादी को भी पूछ लिया कि दादी आप लोहे की कढ़ाई का ये जो फिश पे असर होता है वो क्यों होता है। कहती कुछ नहीं होता। कहते तुम्हारी बेटी तो कह रही थी कि लोहे की कढ़ाई में। कहती उस जमाने में गरीबी थी, पैसा था नहीं, हम लोहे की कढ़ाई में बना लेते थे। कहानी कितने थी हम्म, कितने पहुंच गई। फिर जी वो कहता है जी कि सरसों के तेल में क्या स्वाद है, सबसे सस्ता सरसों का तेल होता था उसमें बना लेते थे। फिर वो कहता है जी कि वो फिश को सेंटर से 2 पीस करना और साबुत बनाने में कोई फर्क है। कहती कोई फर्क नहीं है। तो फिर आपकी बेटी 2 पीस क्यों करती है। कहती हमारे जमाने में कढ़ाई छोटी होती थी, पूरी फिश आती नहीं थी, हम उसके 2 टुकड़े कर देते थे। की मतलब निकले मोगा साहब गल कुछ भी नहीं पर बहुत कुछ हो गया। गल मतलब ना कुछ निकलता गया, कुछ ना कुछ निकलता गया। यानी कि जब तक एक क्लैरिटी नहीं आएगी, क्लैरिफिकेशन नहीं आएगी इस गल दी पूरी, बल्कि ਉਹ मैं कई ਰੀਅਲਟਰਸ ਨੂੰ कई ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ सोशल मीडिया कहते देखे हैं 2.7 मिलियन का फ्रॉड पकड़ा गया, इतने का फ्रॉड। बल्कि उनके ऊपर मानहानि का केस हो जाना चाहिए जब तक बात क्लियर नहीं होती। फ्रॉड तब है जब पैसा गायब हो गया, पैसा तो पड़ा हुआ है। हाँ, misappropriation I understand, RICO is very responsible and they are doing a good job, लेकिन जब तक सब कुछ सामने नहीं आ जाता क्लियर, ये आवाज करना गलत बात है। ये जी पीके जी। जी 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 नहीं नहीं बिल्कुल सही है, आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया इस चीज को जो कि समझ में आ रही है चीज। और वैसे भी अगर देखा जाए तो जब तक दोनों साइड की स्टोरी ना आ जाए तब तक डिसीजन लेना भी नहीं चाहिए। हम डिसीजन लेने वाले होते भी कौन है होते एक्चुअली। ही कौन है, अपने विचार हाँ दे सकते हैं दोनों हम तरफ अब से, है ना। और बिल्कुल हम उसके अलावा कुछ कंप्लेंट्स, कुछ लोग जेलसी वाले, राइट, कुछ लोग सच्चे भी होंगे बीच में, राइट, कुछ लोग मजे लेने वाले होंगे, राइट, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मैं अक्सर कहा करता हूँ अच्छे ने अच्छा बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसको जितनी जरूरत थी उतना पहचाना मुझे। ठीक है ना जी मोगा बिल्कुल साहब। सही तो जी मैंने क्या बिल्कुल। किया, रियल एस्टेट के अंदर मच्छी को डाल दिया और सरसों के तेल को डाल दिया। सही बात है, जी आपने बिल्कुल सही बताया। सर अब ये तो ठीक है, ये जो भी होगा अपने आप, क्योंकि दोनों साइड की जब स्टोरी आएगी कोई ना कोई डिसीजन लेंगे ही लेंगे वो। रिको पे डिपेंड करता है, जब दूसरे तरफ की सारी क्लैरिटी आएगी तो वो क्या डिसीजन लेते हैं। पीके जी वैसे अगर देखा जाए अभी अ, आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट हम कितना टाइम और सोचें कि ये थोड़ा सा लाइक टर्न अराउंड करे जहां पे जाके।
मुझे लगता है कि 6 महीने तो सोचो मत आप। जी 6 महीने यही रहेगा, फ्लैट रहेगा या थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर की तो उम्मीद लगती नहीं। पर मुझे 6 महीने बाद नेक्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर मुझे लगता है कि एक्टिविटी स्टार्ट होगी। एक तो मतलब जुलाई समर का से। महीना आ जाएगा, जुलाई हाँ अगस्त, समर प्रॉपर एक्टिविटीज। और कुछ ये, हालांकि हम ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट अभी 1 साल रुकने वाला है, पर इकोनॉमी कहाँ चलती है, इन्फ्लेशन कहाँ जाती है, एम्प्लॉयमेंट कहाँ होती है, कहाँ अलग अलग हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं। यूरोपियन यूनियन कुछ अभी कह रही थी ट्रेड के लिए, अपना ट्रम्प साहब चुप करके बैठ गए। चाइना के साथ अब वो जा रहे हैं अप्रैल में, उनको लगा डर कि भी चाइना, अब ये कार्नी साहब हाथ मिला रहे हैं। तो ये हरकतें सारी 4-5 महीने में क्लियर होती नजर आ रही है। तो उसके बाद सोचा जाएगा क्या होगा। लेकिन पहले 3-4 महीने, हाफ ऑफ दिस ईयर, तो मुझे कुछ होता नजर नहीं आ रहा। और संभलते संभलते भी इसको 2 साल लग जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर आते हुए 2 साल, अच्छा आते हुए, मतलब शुरुआत तो मुझे लगता है 6-7 महीने में हो जानी चाहिए। और उसके बाद उसको संभलते संभलते 2 साल हो जाने चाहिए, ये मेरा मानना है। जी पीके जी, वैसे तो देखा जाए तो 4 साल तो बीत ही गए हैं। 22 से स्टार्ट हुआ था ये प्राइस हाँ, गिरना। 3 साल मान लो पूरे। 3 साल जी। पूरे मान लीजिए आप, हाँ। हाँ। सो 3 साल तो हो ही गए। अब और 2-3 साल लगेंगे। और रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है जो नॉर्मली जब इस तरह की सिचुएशन आती है उसको 4-5 साल 6 साल लगते ही हैं थोड़ा थोड़ा वापस रिकवर करने में। बिल्कुल। और सो देखिए कि जब 45 साल जब से डाटा कलेक्ट करना शुरू किया है, जीटीए की लोएस्ट सेल रही है 2025। ओनली 5300 होम सोल्ड। 5300। यार एक एक हजार तो घर हम ही बेच लेते थे। तो ये 45 साल का जब से रिकॉर्ड लेना शुरू किया है, ये लोएस्ट सेल रही है। फिफ्टी थ्री ये हंड्रेड कोई पूरे साल में। पूरे साल में, ओ वाह। एंटायर ईयर, 5300 इन जीटीए, एंटायर ईयर। ये रिकॉर्ड बन गया। अब तक का रिकॉर्ड है ये 45 साल के अंदर, जब से उन्होंने डाटा कलेक्ट करने शुरू किए हैं। सर, कॉन्डो अपार्टमेंट्स 89% बिलो 10 ईयर एवरेज, 89% बिलो 10 ईयर एवरेज। और ये 95% बिलो 2021। वाह। फिगर ये डराने वाली है कि नहीं? सिंगल फैमिली होम 63% बिलो 10 ईयर्स एवरेज। मतलब दिस इज समथिंग विच इज टू बी करेक्टेड, जिसका टाइम आ गया करेक्ट होने के लिए, मैं तो कहूंगा। जी। जी जी बिल्कुल। पीके जी, वैसे तो देखा जाए तो जैसे आप रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, पहले हम इकोनॉमी की जो बात कर रहे थे, इकोनॉमी भी लाइक हम जो सोच रहे हैं, जो जो सारे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं इधर उधर, और यूएस के साथ देखते हैं क्या होता है, तो इकोनॉमी भी धीरे धीरे सुधरने के चांसेस तो बनते ही जा रहे हैं। आज हमारे मिस आनंद, जो हमारे मिनिस्टर हैं, वो आज यूएस में है, क्योंकि इनविटेशन आया था बात करने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, ट्रेड के ऊपर। सो हम्म। क्योंकि अब उनको क्रिटिकल मिनरल्स तो चाहिए ना, और वो हमारे पास बहुत है। ये तो मान के चलिए पीके जी, अगर इकोनॉमिक पावर चाइना से यूएस को लड़ना है, तो यूएस को कनाडा, मेक्सिको चाहिए साथ में, इवन यूरोप भी चाहिए साथ में। तब जाके वो कुछ फाइट दे सकता है। अकेला फाइट नहीं दे सकता, डिवाइड करके फाइट नहीं हो सकती है। हमें अलग कर रहा है, और मैक्सिको अलग कर रहा है, यूरोप अलग कर रहा है, तो किसके साथ किसके किसके सहारे फाइट करेगा? हमने तो जाके चाइना से एग्रीमेंट कर लिया। अगर आपको ये चाहिए कि हम चाइना से एग्रीमेंट ना करें, कनाडा, बाकी लोग भी चाइना से एग्रीमेंट ना करें, तो तुम्हें उनको अपने साथ रखना पड़ेगा ना। अगर इस तरह की सिचुएशन है, तुम एक तरफ से जी। तुमको धक्का भी मार रहे हो, और उनको ये भी बोल रहे हो कि तू उसके पास भी नहीं जा सकता। तो आप भी धक्का मारो और उसके पास भी नहीं जा सकता। ये तो दादागिरी है बेसिकली। तो कितने लोग दादागिरी को संभलेंगे और समझना चाहेंगे इस तरह की सिचुएशन में? तो हाँ। आई आई थिंक कि धीरे धीरे थोड़ा सा पॉजिटिव में जाना शुरू होगा। जुलाई की डेट है पीके जी हमारी, जो कुसमा की जो रिव्यू डेट है, जुलाई की है। अब जुलाई में डिसाइड करते हैं कि होता क्या है, क्योंकि जुलाई एक ऐसी जगह है जहां पे या तो आप 16 ईयर्स के लिए उसको बढ़ा सकते हो, कुसमा को,
या आप उसको खत्म होने दे सकते हो, जो कि 10 साल लगेंगे, लेकिन हर साल उसका वो चलता रहेगा और एवरी ईयर रिव्यू चलेगा। एवरी ईयर रिव्यू पे भी डाल सकते हो, भी एवरी ईयर रिव्यू करेंगे, व्हिच डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी, क्योंकि हर साल आप थोड़ी सारा साल रिव्यू करते रहोगे, हर साल बैठे रहोगे वहां पे रिव्यू करते हुए। लेकिन हो सकता है ट्रम्प साहब के टाइम पे इस तरह का हो जाए, बट फिर 3 साल की बात है। 3 साल के बाद जो नया प्रेसिडेंट आएगा, वो तो ये हालात नहीं रखना चाहेगा जो अभी बने हुए हैं। पूरी दुनिया से हम दुश्मनी लेके बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया में ट्रेड को हिला के रखा हुआ है। सो जैसे ही ये चले जाएंगे, उनकी जगह जैसे ही कोई आएगा, सारे डील्स होनी शुरू हो जाएंगी। बट देखते हैं, अभी तो सिचुएशन ठीक, देखते हैं कैसी जाती है, क्योंकि अभी जैसे हमारे ये अनीता आनंद अब आज जैसे गए हुए हैं वहां पे मिनरल्स के लिए, टॉक के लिए। इस तरह की कोई चीजें अगर शुरू हो जाती हैं एटलीस्ट, तो हमारे लिए भी अच्छा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी मेरे ख्याल मार्च या अप्रैल में इंडिया जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट वहां भी साइन करेंगे, उनकी चल रही है, सारा कुछ चल रहा है उनके बीच में, तब वो जाके साइन करके आएंगे। सो अगर वहां जाके भी साइन करके आ गए, तो यूएस तो वाकई प्रेशर में है, आ रहा है, वो पड़ता जा रहा है प्रेशर में, क्योंकि सब जगह पे हमारे एग्रीमेंट हो रहे हैं, और हम हमें जो वो धमकियां दे रहे थे, वो धमकियां अब खत्म होती नजर आ रही हैं। अब उन धमकियों का कोई मतलब नहीं रह रहा है। धीरे धीरे अगर इस तरह के एग्रीमेंट हो जाते हैं, तो हम बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। तो सो लेट्स सी होता क्या है। पीके जी, वैसे तो हमारा भी टाइम होता जा रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगे एंड में? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे ये टॉक शोज़ वगैरह सब होते हैं, इसको टीम सब्रवाल की साइड पे जाकर भी सुन सकते हैं। जितने मर्जी पुराने, बहुत पुराने, 15-20 साल पुराने भी, सब टाइमिंग्स के साथ। प्लस इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करिए मेरे को, पीके सब्रवाल ऑफिशियल, पीके सब्रवाल ऑफिशियल। उस मेरे को फॉलो करिए, वहाँ पर बहुत कुछ बायर टिप्स, सेलर टिप्स, बायर मिस्टेक, सेलर मिस्टेक, ज़िंदगी की और सच्चाइयाँ, और जी कहते हैं लाइफ ट्रुथ, वो बहुत कुछ आपको देखने को, सुनने को मिलेगा, जो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। पीके सभरवाल ऑफिशियल इंस्टाग्राम। और प्लस फॉर एनी रियल एस्टेट नीड, कुछ पूछना हो, चाहे हमसे आपने लिया हो प्रॉपर्टी, ना लिया हो, डजंट मैटर, इट्स माय पैशन, मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए विद नेम, विल इनवाइट यू, विल डिस्कस, बट ओनली टेक्स्ट मैसेजेस। कॉल्स मेरी नहीं मैं पिकअप करता, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉल्स, ये फॉरवर्ड हो जाती है मेरे ऑफिस में, मेरी असिस्टेंट के पास। तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज डालिए विद नेम एंड विल गेट बैक टू यू, 6472994757 जी। जी पीके जी, बिल्कुल। और मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ जी, सीएफपी हूँ। सो किसी तरह की भी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की नीड है, जिसमें कि फाइनेंशियल प्लानिंग आप उसको एक अम्ब्रेला कह सकते हो, उसके नीचे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग, एजुकेशन प्लानिंग, फैमिली, हाउ यू विल रन द हाउस, और किस तरह ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਓਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, we can go there and we can invest for you, or insurances, कोई किसी तरह की भी आपको इंश्योरेंस चाहिए, जो कि लाइफ इंश्योरेंस हो सकती है, क्रिटिकल है, डिसेबिलिटी है, ट्रैवल इंश्योरेंसेस हैं। सो ये सारी तरह की इंश्योरेंसेस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 6472851007। थैंक यू वेरी मच पीके जी, तुसी आए मेरा साथ देता। थैंक यू वेरी मच साहब, अगले बुधवार फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, अगले बुधवार फिर मिलते हैं जी। थैंक यू। Why Media Group, the fastest growing media group in North America.